Himachal Pradesh, where Chief Minister Sukhwinder Singh Sukkhu has spoken on the controversy surrounding the mosque in Shimla and has stated that India is a secular country and all religions are respected here. He has urged people to not get carried away by their emotions and work as per the law. He is also assured that he will take further action as per the law and has added that the government's duty is to make sure that there is peace between all communities. Remember, viewers, massive protests erupted in Shimla over the alleged illegal construction of the Sanjoli Masjid. The protesters included locals as well as party workers from the BJP and various members of Hindu organizations. Protesters were seen raising slogans along with holding the tricolour in their hands and have protested against the illegal construction. Earlier itself, Himachal Pradesh Minister Anuruddh Singh had pointed out that the Muslim community has peacefully coexisted in the state for generations. However, he expressed concern over the recent influx of people from other states and has emphasized that the primary issue is ensuring proper verification of newcomers and has also called for an investigation into the illegal construction of, as he puts it, the Sanjoli Masjid in Shimla, which has now invited protests from the Bharatiya Janata Party as well. Meanwhile, his fellow party members have in fact contested his statement and have called for the fact that the situation is under review and that they will work according to the law. Addressing the Himachal Assembly, the minister had earlier asserted that the matter had created tension in the area, a claim that has been disputed by other Congress leaders as well. The mosque's construction has been at the center of a heated debate in recent days in Himachal Pradesh. Around 44 hearings in the courts have already taken place regarding the alleged illegal construction, but no final decision has been reached upon till now. On that note, viewers, let's also listen in to what exactly Himachal Chief Minister Sukhwinder Singh Sukkhu had said about the issue. भारत एक सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का सम्मान है। जो भी भावनात्मक घटनाएं होती है, भावना में भय करनी होनी चाहिए। कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना है और जिस प्रकार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पूरी नज़र रखे हुए है और अभी मैं अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए कि शांति बनाए रखनी है और जो भी आगे कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर करनी होगी हम उसको करेंगे। यही मैं कहता हूं। All right, there, of course, viewers, you've heard what the Chief Minister of Himachal Pradesh has had to say. My colleague Kameshwar is joining us live on the broadcast to share more details. Kameshwar, first up, what's the situation like on the ground? Are protesters still demonstrating on the streets? जी, अगर हम बात करें बीते दिन की, तो जिस तरीके से जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, संगठन है, वो मिलकर उन्होंने खासकर जो चौड़ा मैदान में भी विशाल धरना प्रदर्शन किया, वहीं संजौली में भी विशाल धरना प्रदर्शन किया तथा 2 दिन के लिए सरकार को अल्टीमेट दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। वहीं जो देखा गया शाम के समय जो कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि कुसुम्पटी क्षेत्र में भी जो मस्जिद का मामला है वो गरमाया गया है और खासकर वहाँ भी धरना प्रदर्शन किया गया और 3 घंटे तक वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। बता देना चाहते हैं कि खासकर जो कुसुम्पटी के जो पार्षद है कुसुम ने कहा है कि यहाँ पर जो मस्जिद का जो निर्माण किया गया है लगभग 5 वर्षों के दौरान, जिसके चलते पहले व्यक्ति ने पहले घर का नक्शा पास किया था, घर के बाद उसे तब्दील कर दिया मस्जिद में, जिसके चलते वहां भी लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है जो संजौली मस्जिद का जो मामला है, इसके बाद अब जो विभिन्न क्षेत्रों में भी जो संगठन है वो आक्रोश में आ गया है तथा कुसुम्पटी में भी कल जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया था 3 घंटे तक, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस तरीके से अवैध निर्माण हो रहा है, पहले भवन का निर्माण किया गया, उसके बाद तब्दील कर दिया गया उसे मस्जिद में, तो इसके चलते भी वहां पर जो सिचुएशन है अत्यधिक दयनीय है। उसके बाद बात करेंगे हम जिस तरीके से अनिरुद्ध सिंह ने स्पष्ट रूप से 2 टूक कहा है कि हम बात मस्जिद की नहीं है, बात है वैध अवैध की। उन्होंने कहा कि नगर निगम
के अंतर्गत यदि 1 इंच भी कोई व्यक्ति अपना भवन का निर्माण करता है तो उसे तोड़ दिया जाता है। वहां पर तो 2 मंजिला पहले कच्चा मकान था, उसके बाद उसे तोड़ने के पश्चात उसे 5 मंजिला बना दिया गया, बहुमंजिला बना दिया गया, जिसके चलते वहां पर लोगों को आने जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और साथ ही सबसे बड़ी बात उन्होंने यह कही है कि अवैध और जिस तरीके से निर्माण किया गया उसके विरोध में। वहीं अगर जो देखा जा रहा है इसके चलते जो कल भी जो देखा गया काफी धरना प्रदर्शन किया गया, सैकड़ों की तादाद में लोग आए, विभिन्न जिला के लोग यहाँ पर आए, हिंदू संगठन एकजुट हुए। उन्होंने कहा कि लगातार जिस तरीके से जो ये गतिविधियां बढ़ी है वो कहीं ना तो कहीं आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश भी बांग्लादेश बन जाएगा। वहीं अगर हम बात करें मस्जिद के जो संचालक है, उन्होंने कहा है कि जो ये मस्जिद है आजादी से पहले की 1947 की पहले की है, और जो उसके बाद जो स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पहले यह 2 परिवार रहा करते थे और 2 जो मकान था 2 मंजिला था और कच्चा था, लेकिन उसके बाद इसका निर्माण किया गया। उनका कहना है कि चंदा लेने के पश्चात यहाँ पर किया गया। फिलहाल अब सरकार का स्टैंड यह है कि जो अवैध है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम प्रशासन ने भी लगभग 44 बार नोटिस दिया है अवैध का, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो निर्माण है लगातार तीव्र गति से चलता रहा। वहीं कल इसकी पेशी है फिर से नगर निगम आयुक्त के पास, और 45वीं पेशी भी है। इसके अलावा जो 35 बार नोटिस दे दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो निर्माण है वो नहीं रुका। तो वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रम सिंह ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जो ये मामला है वो विचाराधीन है, कोर्ट के जो कोर्ट निर्णय लेगी वो सर्वोपरि है। और वहीं अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की हम बात करते हैं, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा कि हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय राज्य है, और जो भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, जो कानून के दायरे में जो कार्य होगा वो किया जाएगा। अगर वो अवैध है उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.